Today also I am making a statement that कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल। जब तक भगवान राम के दर्शन नहीं करोगे मैं टीवी चैनल पे नहीं जाऊंगा, मैं प्रेस वार्ता नहीं करूंगा। तो क्या जवाब मिला? Okay. So is this the reason you are not on TV channels for the last 4 months? I went to every senior Congress leader and just begged like this, as if I am asking for a job. You are not naming them, but does Rahul Gandhi include in this list? Yes. जब राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, तो अगर वो खुद भी लड़े अमेठी से। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट can't take single decision. Former RBI Governor Raghuram Rajan said that India is making a big mistake by believing in hype of its growth. Raghuram Rajan is making these statements because he was thinking that wherever the UPA or Congress will come to power, he will be offered finance ministership. That is the only lucrativeness for him. क्या आने वाले दिनों में गौरव वल्लभ कहीं से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इस लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में। भाजपा ने भी कई सारे दागी नेताओं को लिया अपनी पार्टी में, जैसे प्रफुल्ल पटेल है, अशोक चव्हाण है। ये लोग बड़े नेता रहे जिनके ऊपर बड़े आरोप रहे, लेकिन अब वो भाजपा में है। आपको मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी का एक ट्रेजरर है, क्यों नहीं लड़ रहा चुनाव? 3 चुनाव दिल्ली से हार गए, चौथा चुनाव लड़के बताएं। When you said कि शशि थरूर ने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखने के अलावा क्या किया है? If you will invite him for your program, for example, you invite him, business class, suite, most expensive suite of that hotel, to and from Mercedes S class. These are his demands. केरला मॉडल क्या है? What is केरला मॉडल? बोरिंग्स करके फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के खर्चा करते जाओ, that is not a economically viable model. 2019 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त जो कांग्रेस ने पूरा चुनाव लड़ा वो रफाल के मुद्दे पे लड़ा। ये चुनाव लगभग अगर मोटे तौर पे कहें तो कांग्रेस पार्टी अडानी, अंबानी और कास्ट सेंसस के ऊपर बात कर रही है। Congress party had started abusing their own policies. The liberalization, privatization, globalization was given to our country by P.V. Narasimha Rao's government. India is the only bigger economy in the world which is growing at 7.5 to 8%. जो बाकी 10 जो बड़ी इकोनॉमीज है उसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट 3.7% है, और कुछ देश तो 0% या नेगेटिव ग्रो कर रहे हैं, जैसे रूस। कुछ जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, चीन, वो 1%, 1.5%, 2% के आसपास ग्रो कर रही है। We are growing at 8%, 7.5%. Namaskar, I'm Nishant Kumar Azad and today we are joined by a distinguished guest who is an economist, a politician, a public speaker and much more. Till few days ago, he was in the Congress party and now he is not in the party. After quitting Congress, he made severe allegations against the party and then he joined BJP. Yes, I am referring to Mr. Gaurav Vallabh. Namaste Gaurav ji, welcome to the organizer. My first question is कि when you quit Congress, you made severe allegation against the party that party has become anti-Sanatan and directionless. Why so? See, this is not allegation, this is the truth. When Congress party leaders and its alliance partners are abusing Sanatan and Congress is silent, it means they are giving silent approval to that. And I told all senior leaders of the Congress party, all means whatever senior leaders comes to your mind, all, that please break the silence. Please open up and tell that we are not going to agree to these abuse to the Sanatan. But Congress party had not listened to me. Second thing which I had written in my letter also, on the day when the Pran Pratishtha of Bhagwan Shri Ram was organized, I told them to attend the program. And I told them, don't think about political plus or minus. If you are not going to attend the Ram Mandir's Pran Pratishtha of Bhagwan Shri Ram, you are committing sin. And I am not going to be part of your sin. मैं आपके पापों का भागी नहीं बनूंगा. And last but not least, you have to stop somewhere. When clean chit was given by Securities and Exchange Board of India to Adani, morning to evening abusing every wealth creator of the country. Adani kharab, Ambani kharab,
Tata Kharab, when Tata had purchased Air India, Congress party started abusing them. Any other business group who is bad because they had appreciated the policies of the government of India. So I can't have that kind of courage to sit in front of TV cameras and abuse Sanatan, abuse Bhagwan Shri Ram, abuse the wealth creators of our country. I can't make any these kind of statements. That's the reason I had written that Congress party had become purely directionless. They don't know where to go. On one sudden day morning, they will start caste census. On next day, they will start about abusing Ambani and Adani. Next day, they will start about the EVM hacking. Next day, they will start about unemployment. Next day, they will start about the price rise. Next day, they will start about the Agniveer. Next day, they will start on GST. And then this cycle is going to be repeated again and again. And they don't have any concrete idea to overcome the problem. See, opposition party had one dharma that they should criticize, but they should have constructive criticism. Yes. When I am criticizing someone without giving what is the right way, this criticism is is not of any use. So that these were the three major issues. I anti-Sanatan policies of Congress party, anti-Bhagwan Shri Ram policies of Congress party, and in an endeavor to abuse Prime Minister Modi, Congress party had started abusing their own policies. The liberalization, privatization, globalization was given to our country by PV Narasimha Rao's government. Now Congress party is anti-liberalization, anti-privatization, anti-globalization. So I told them, and for 4 months I was moving with all these reservations to all senior leaders. And I had an access. There is no problem for me to convey my thoughts to them. But they had not. You mean to say Malika ji, Sonia ji, Rahul I am ji? saying why three? All means if you are having in your mind 10 senior leaders, all of them. Okay. You are talking about Pran Pratishtha. You are not the only person who left Congress giving this reason that party has denied the invite of Pran Pratishtha and becoming anti-Sanatan. I have a list of 5 to 6 people like you, Anil Sarma ji, the former Congress BJP Congress chief, Bihar, Achar Pramod ji, Arjun Modwadia and Rohan Gupta. They all allege that party has become anti-Sanatan. What happened that the people who are running the show in Congress party, they had not contested the election of a monitor. They had never contested the election of class monitor. You are talking about whom? I don't want to name, it doesn't look nice because I had worked with them, but they had not, the person who had drafted and who had decided that Congress party is not going to attend the Pran Pratishtha of Bhagwan Shri Ram, he had never contested the election of class monitor. I am telling you, and for last 4 terms he is constantly in Rajya Sabha for last 24 years. His only mission is to secure his Rajya Sabha seat. Nothing more, nothing less. So that is the reason he doesn't know what is the ground level issues and aspirations of our country. He doesn't know. तो क्या सीनियर लीडर्स को ये दिख नहीं रहा है कि इन सेविंग हिज पर्सनल इंटरेस्ट ही इज हार्मिंग द पार्टी? सीनियर लीडर्स जो शीर्ष नेता है वो अगर चुप बैठे हैं तो उतने ही पापी हैं. मैं उनको दोष मुक्त नहीं कर रहा हूँ. But if that person is deciding the Congress party, I will give you another example. This person, when I was in college, I used to watch him on TV as a Congress spokesperson. Today also he is the chief. Why are you not naming that person? See, this doesn't look nice. You are also knowing him. Your all viewers are also knowing him. When I was in college in 1998, I was seeing him as a Congress spokesperson. Today also he is the chief of the media of the Congress party. Why I should name him? Second person who is giving tickets to the candidates, he is not aware of 5 Lok Sabha constituency of Uttar Pradesh. He can't name. If you ask him whether Uttar Pradesh and Bihar are 2 different states, he will say, I don't know. That is his reaction. And I am not kidding with you. And if Congress senior leadership is allowing such kind of people to run the party, they are also part of this crime.
Number third, when I was in class 10th, I was in class 10th in 1992. The person who was making the manifesto of the Congress party, the same person is making today also. For the last 30 years. Ah. So if his idea had some merit, then why Congress party will reach 42? Why Congress party is reached 52? And I told all those things to all senior leaders that this class monitor election not contested guy doesn't deserve to be even entering into the Congress party, because he is not, his only job is to secure his Rajya Sabha, nothing more. Question is why party is entertaining That him. is what I am saying. No? That's what I was telling. Party had lost its ground connect and party is directionless. And the senior leadership of the party is believing on these people. It means they are, I'm not saying equal in crime. They are committing more crime than these three people. And I told them कि भैया ये सब लोगों से देश की राजनीति नहीं चल सकती. जिसने क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा वो नीति बना रहा है. 30 साल से एक ही आदमी मैनिफेस्टो बना रहा है. अगर उसके आइडिया में दम होता तो 2014 में 42-44 सीटों पे क्यों आती, 2019 में 52 सीटों पे क्यों आती कांग्रेस पार्टी. एक तीसरा आदमी जो टिकट दे रहा है उसको उत्तर प्रदेश और बिहार का अंतर नहीं पता है. आप इश्यूज तो छोड़ दो, वो उत्तर प्रदेश के 5 जिला अध्यक्षों का नाम बता दे तो मैं जीवन पर्यंत उसका गुलाम बन जाऊं. They are not aware and they are deciding about the Congress party. Yeah, we have seen that during this time also in the manifesto, they have used two pictures. One in the agricultural section and one in the, I think, river pollution of river section. Both the images used by the Congress party is from from other countries. That's what I am telling. Na? Congress party is anti-young people. They doesn't allow young people to enter. The Congress party is anti the aspirations of our country. I will give you one more example. Congress had organized a Chintan Shivir in Udaipur. Yeah. I also attended. And one of the primary highlight of that Chintan Shivir is 50 under 50 program. Means 50% of seats at AICC level, PCC level, DCC level, at MLA candidates level, at ministers allocation level, 50% of seats will be for the people under age group of 50. That was the program. Yeah. It was resolved, it was accepted in that particular Chintan Shivir. 2 years had passed. At no point in country that formula was implemented. When a party can't implement its own resolution which was decided by them for them, then what they will deliver to the country? If Congress party is saying anything in manifesto, who is going to believe? Because what they decided for themselves, they are not able to implement. So is this the reason almost all the youth leaders of the party like you, Milind Deora, Jitin Prasad, Jyotiraditya Scindia, everybody is leaving the party. Is this the reason? I think that's a major reason, but I can't say about other people, but I think that's a major reason. But for me, 3 reasons. I can't abuse Sanatan. And I told Congress party, I will give you another example. Every year I used to do a budget press conference. And that was one of the most sought after PC for our country, even for the media. This year I told that I will not do because you had not gone to Pran Pratishtha Darshan. I will not do. Okay. So is this the reason you are not on TV channels for the last 4 months? I was telling them कि जब तक भगवान राम के दर्शन नहीं करोगे मैं टीवी चैनल पे नहीं जाऊंगा, मैं प्रेस वार्ता नहीं करूंगा. तो क्या जवाब मिला? ओके, आप मत जाइए. नहीं ऐसा नहीं बोला. ओके, लेट अस सी. बट hearing from this ear and just getting it out from the other side doesn't help me. I went to every senior Congress leader and just begged like this, as if I am asking for a job, that ye sab paap mat karo. But as I told you, na, that these 3 people, there are many other people, but these 3 are I can say they are running the show, and Congress party senior leaders are allowing them to run the show.
Congress party president can't take single decision. Can you believe that? Mallikarjun Kharge. Yes. He's a good person. I repeat, he is a good person. But he can't take any decision because these three people take the decision. You are not naming them, but does Rahul Gandhi include in this list? Yes. Okay. When I am saying all senior means all senior, why you are naming 1, 2, 3? Whatever names comes to your mind. I will give you another example. There is a apex body of Congress party called as CWC, Yeah. Congress Working Committee. The apex decision making, policy frame making body. You will be surprised that there are more than 100 members, which include special invitee, permanent invitee, general secretary, secretary in charges, CWC members, around 70 to 100. Not more than 3 are contesting elections. So when Rahul Gandhi ji is saying डरो मत, सबसे पहले तो इनको सिखाओ ना CWC मेंबरों को, ये क्यों डरते हैं? किससे? हारने से, 8 लाख से हारने से। कितने लाख से? 8 लाख। हाँ। आपको मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी का एक ट्रेजरर है, क्यों नहीं लड़ रहा चुनाव? 3 चुनाव दिल्ली से हार गए, चौथा चुनाव लड़के बताए, क्यों घबराता है? जनरल सेक्रेटरीज है, लाइन से नाम बताऊंगा, क्यों नहीं लड़ते चुनाव? पूरा स्टेट के इंचार्ज हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि 3 बार हार गए, चौथी बार फिर 8 लाख से हार जाएंगे, तो फिर उनकी इज्जत खराब होती है। तो जब राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, सबसे पहले तो इनकी क्लास लो, ये भी बताया, बोला मैंने इनको। जब राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, तो अगर वो खुद भी लड़े अमेठी से, वाई ही इज अफ्रेड? हमको बोला, मैं आपको बताऊं, मुझे कल जैसे नॉमिनेशन की लास्ट डेट है 2019 में, झारखंड का असेंबली चुनाव तक, कल जैसे लास्ट डेट है, मुझे आज शाम को बोला आप चुनाव लड़ो। मैंने टिकट नहीं मांगा और बोला कि जाओ मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ो, पूरी ताकत से लड़े, पूरी ताकत से, ईमानदारी और निष्ठा से। 8 बार से भाजपा जीत रही उस सीट पर, मुख्यमंत्री सिटिंग वहां से है, पर हम नहीं डरे। मुझे बोला कि जाओ उदयपुर से चुनाव लड़ो, जो 5 बार से बीजेपी जीत रही है, पूरी ताकत से लड़े चुनाव, वहां भी हारे पर पूरी ताकत से। हम नहीं डरते, पर आप कह रहे हो डरो मत, खुद ही डर रहे हो आप। तो ये CWC में जो सो कॉल्ड लाइबिलिटीज बैठी है, इनको लड़ाओ ना चुनाव। Why they are afraid of contesting the election? That is the primary question I am asking. Are they meant only for doing इधर से उधर चुगलियां करने के लिए बैठे हैं वो? Their only job, the CWC members' only job, morning breakfast. This is morning tea. They will take first sip and will decide आज मोदी जी को पिता की गाली दे या माँ की गाली दे. Then this is the lunch soup. We'll again take a sip. आज अडानी को पकड़े, अंबानी को पकड़े, गोदरेज को पकड़े, टाटा को पकड़े, किसको पकड़े, बाईजी को पकड़े, पेटीएम को पकड़े, किसको पकड़े और उनका रिलेशनशिप लिंक करें. दिस इज इवनिंग टी या इवनिंग सूप. वो क्या काम करते हैं मैं नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मेरी उतनी अभी तक मैं उतना नीचे मेरे माता पिता की शिक्षा के अनुरूप मैं नहीं गिरा. मैं आई कांट शेयर विथ यू. आपने कहा कि जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी में, जो कोर टीम में हैं, उनका काम है चुगलियां करना. मुझे आपका एक पुराना स्टेटमेंट याद आता है व्हेन यू सेड कि शशि थरूर ने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखने के अलावा क्या किया है. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट स्टेटमेंट? बिकॉज इन व्हाट मैं बताता कॉन्टेक्स्ट? हूँ आपको, उनका काम ही ये है कि ही यूज्ड टू राइट लेटर्स. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट वांट टू टेल हिम, बट his only job is to write letters. If you will invite him for your program, for example, you invite him, business class, suite, most expensive suite of that hotel, to and from Mercedes S class. These are his demands. आप बोला, आप चेक कर लो ना, मेरे पे विश्वास मत करो. आप एक मेल कर दो कि हम आपको एक कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं, वापिस क्या जवाब आए मुझे बता देना. When you left Congress and came into BJP, one of your old videos went viral.
your debate with Patra, where Sambit Patra said that the country will become $5 trillion dollar economy by 2024, and you asked that how many zeros are there in the 5 trillion. Now you both are in the same party. कैसे करेंगे? ट्रिलियन को 1 लाख करोड़ बोलेंगे, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़, तो 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनेगी, वो बोलेंगे। तो क्या लगता है कि बनेगी भाजपा? That's a technical and very serious question because last one was little bit on a lighter note. दुनिया में 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और 5वें नंबर पे है भारत। अमेरिका की लगभग 23-24 ट्रिलियन डॉलर है, चीन की लगभग 17-18 ट्रिलियन डॉलर है, जापान की 4.4 ट्रिलियन डॉलर है, जर्मनी की 4.1 ट्रिलियन डॉलर है और इंडिया की अभी 3.4 ट्रिलियन डॉलर। और दुनिया की ये जो बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसमें अगर भारत को हम हटा दें तो पीछे 9 बचती है। उन 9 में सबसे जो हाईएस्ट जो ग्रोथ है वो है लगभग 3.7%, 3.7%। इंडिया की जो ग्रोथ है अगले 5 से 7 साल की, वो मैं नहीं कह रहा, IMF की प्रेडिक्टेड डाटा है, वो 7.5 से 8%, ऑलमोस्ट डबल। हाँ। तो इस ग्रोथ रेट से अगर हम ग्रो किए तो अगले 3 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और 3 से 4 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर को अचीव कर लेंगे 3 साल में, इसी ग्रोथ रेट से, कमिंग 3 years, इसी ग्रोथ रेट से। मैं इस ग्रोथ रेट को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, इसी ग्रोथ रेट से 25, 26 एंड या 27 में हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। एंड दिस इज साइंटिफिक डाटा विच आई एम शेयरिंग विथ यू। तो इंडिया इज द ओनली बिगर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विच इज ग्रोइंग एट 7.5 to 8%। जो बाकी 10 जो बड़ी इकोनॉमीज है उसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट 3.7% है और कुछ देश तो 0% या नेगेटिव ग्रो कर रहे हैं, जैसे रूस जो पहली 10 अर्थव्यवस्थाओं में एक है, नेगेटिव ग्रो कर रही है। कुछ जो बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, चीन, वो 1%, 1.5%, 2% के आसपास ग्रो कर रही है। वी आर ग्रोइंग एट 8%, 7.5%। सो दैट इज द कैरेक्टर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर इकोनॉमी। तो आप ये कह रहे हैं ना कि इंडिया तीसरी बड़ी महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति बनेगी तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के, इसमें मैथमेटिक्स बोल रही है कि 100% बनेगी। दिस इज मैथमेटिक्स। क्योंकि आप और मैं, आप मेरे से थोड़ा सा आगे हैं, आप 2.5-3% से ग्रो कर रहे हो, मैं 8% से ग्रो कर रहा हूं, तो मैं 2 साल में ही आपको पीछे कर दूंगा। एज सिंपल एज दिस इज mere मैथमेटिक्स। As we are discussing in economics, former RBI Governor Raghuram Rajan said that recently that India is making a big mistake by believing in hype of its growth. You have been the economic advisor of former Jharkhand Chief Minister also, and you are a professor too. How you look at this statement of Raghuram Rajan? Raghuram Rajan is making these statements because he was thinking that wherever the UPA or Congress will come to power, he will be offered finance ministership. That is the only lucrativeness for him. First point. Second point, when somebody living in a country, because he is not, I don't think he lives in our country. Whether he is having our passport or not, I don't know. But he is not living in our country. He used to be out in America most of the times. So person who is not living in our country, do you expect him to tell good things about our country? Because he doesn't have anything to do with our country. He doesn't believe in the strength. When somebody criticizes India, he criticizes 50 crore young population of our country. When somebody criticizes the India, he criticizes the intellect power of our country. When somebody criticizes the India, he criticizes the women workforce of our country. When somebody criticizes the India, he is criticizing the world's, I can say, most speedy growth rate which is there in the first 10 countries of the world. We are having 7.5 to 8% growth rate. Other countries are not having. So, making a statement कि growth rate बेकार है, तो उनको ये भी बताना चाहिए ना कि क्या सही है।
भाई उन्होंने क्या कहा कि ग्रोथ रेट से आप इसमें जंजाल में मत फंसो, यही बोला ना, तो किस में फंसे? जो उसको हाइप किया जा रहा है उसके जंजाल में मत फंसो। आईएमएफ भी हाइप कर रही है, जिसका वो बड़ी बड़ी जिसके लिए वो स्वयं कंसल्टिंग करते हैं आज भी, वो भी हाइप कर रही। वर्ल्ड बैंक भी हाइप कर रहा है, एडीबी भी हाइप कर रहा है, ग्लोबल और एजेंसीज है वो भी हाइप कर रही। यही तो प्रॉब्लम है। अडानी खराब, अंबानी खराब। अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी तो सुप्रीम कोर्ट भी खराब। अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी तो सेबी भी खराब, इलेक्शन कमीशन भी खराब, कोर्ट भी खराब, जिला न्यायालय भी खराब, पुलिस भी खराब, इनकम टैक्स भी खराब, सब खराब। जब आपको लगने लग जाए तो सबसे खराब आप हो। जब आपको आपके आसपास सब प्रॉब्लम नजर आने लग जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप हो। So this statement he is making which is anti-academic. मैं इसको कहूंगा एकेडमिक और अर्थशास्त्र के खिलाफ वो बोल रहे हैं। फिर भी बोल सकते हैं, और क्यों बोल रहे हैं मैंने अपनी फीलिंग्स बताई है। Only because of he wants to be the finance. ऐसा मुझे लगता है। मैं फिर कहता हूँ, ये मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि मैं वित्त मंत्री बनूंगा। As we are discussing the economic aspect of the country, and we have recently seen the freebies culture in the Indian politics, and Congress is one of the party who is prominently pushing this. In its manifesto, also Congress has promised so many freebies, and we have seen that the Congress party, where the party is ruling in Karnataka and in Himachal Pradesh, the party is suffering from the financial crisis. On the other side, there is Kerala. We used to boast about the Kerala model, but in the recent past, we have seen that how Kerala is also facing the financial crisis. Even SC has to interfere in the matter. How do you see this freebies culture and the Kerala model? Problem is that lot of times, lot of regional parties, lot of other parties, including Congress, like in manifesto, they had promised many things. If they are going to implement all those things, we require budget size what we are having right now 5 times of that. अगर जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जो लिखी है चीजें, अगर वो सारी लागू कर दें तो 5 गुना बजट साइज चाहिए। तो वो कहते हैं ना बजेगा, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो जब सरकार ही नहीं है तो बोलते जाओ। दिस इज समथिंग लाइक लास्ट मिनट अपन कहते हैं ना कि अच्छा ये नहीं ये ले ले। आप कोई भी अनाउंसमेंट कोई पार्टी करे, और मुझे लगता है अब समय आ गया है इलेक्शन कमीशन को हर पार्टी से, ये मेरा एज ए एकेडमिशियन एक सुझाव है कि हर पॉलिटिकल पार्टी से जब वो जो चीज मैनिफेस्टो में अनाउंस करे उससे पूछे कि प्रूव करके भी दिखाओ कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी। बिकॉज आई हैड सीन मैनी सच अनाउंसमेंट्स अर्लियर बाय आम आदमी पार्टी। पूरी दिल्ली वाईफाई हो जाएगी जी, दिल्ली में सारे कैमरे लग जाएंगे। आम आदमी पार्टी इज गिविंग फ्री बिजली एंड पानी। मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो तो एक छोटा सा पार्ट हुआ, पर उन्होंने तो फ्री बीज का ऐसा कटोरा खोला था, पेंडोरा खोला था कि मतलब आज अगर वो पूरे कर ले तो पूरा हिंदुस्तान का बजट लग जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ फ्रीबीज जो कि एसेंशियल होती है देश के इंक्लूसिविटी के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपये प्रति किसान परिवार को दिए जाते हैं साल। मतलब मैं गिवन द अपॉर्चुनिटी मैं इसके पक्ष में हूं कि 10,000 देने चाहिए। इससे इकोनॉमिक एक्सपेंस नहीं बढ़े? मैं बताता हूं आपको, जब आप रूरल इकोनॉमी में पैसा डालते हो तो रूरल डिमांड बढ़ेगी, रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा। रूरल डिमांड और कंजम्पशन को पूरा करने के लिए रूरल सेक्टर में इंडस्ट्रीज लगेगी, रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा क्योंकि वो लोग पैसा अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए खर्च करेंगे। जब वो क्वालिटी ऑफ, वो किस में खर्च करेंगे? आप किसान को अगर 10,000 रुपया 6,000 रुपये जो अभी दे रहे हैं, वो क्या करने, उसका यूज क्या हो रहा है? वो अपने घर में मोबाइल फोन ले आया तो उसको इंटरनेट एक्सेस मिल गई, वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करने लग गया, वो अपने बच्चों की और परिवार की हेल्थ पे ज्यादा खर्च करने लग गया। तो डिमांड जो है वो पैसा रूरल इकोनॉमी में आ गया। रूरल इकोनॉमी में आने से रूरल इकोनॉमी के जो सप्लायर्स हैं उनको लिए डिमांड बढ़ी,
जैसे ही डिमांड बढ़ी, जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन की डिमांड, अच्छी हेल्थ सर्विस की डिमांड, अच्छे खाने की, पौष्टिक खाने की डिमांड, फल फूल की खाने की डिमांड, अच्छी मोबाइल फोन में इंटरनेट की डिमांड, तो आपकी इकोनॉमी में तो वो पैसा आने से जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट हुआ ही है। दो तरह के फ्रीबीज हैं। एक फ्रीबीज जो दिए जाते हैं और वो अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाते हैं। दूसरे फ्रीबीज जिसे, जैसे मैंने आपको फ्रीबी दिया 1 लाख रुपए, और आप 1 लाख रुपए लेकर चले गए सिंगापुर घूमने, उससे देश को नुकसान हुआ। सरकार का पैसा लगा और आपने उस पैसे का सकारात्मक प्रयोग नहीं किया। जैसे हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पोषण, अच्छा राशन मिल रहा है तो भरपेट भोजन हो रहा है, अच्छा पौष्टिक खाना हो रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी तो वर्कफोर्स इंप्रूव होगी, वर्कफोर्स इंप्रूव होगी तो आपकी जो आउटपुट है फैक्ट्रीज में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में, वो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो कई फ्रीबीज जितना खर्चा करते हैं ना अपन, उससे ज्यादा आउटपुट दे देते हैं। जैसे आपने 50,000 करोड़ का फ्रीबी दी, पर वो फ्रीबी 50,000 करोड़ का जीडीपी में 80,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर जाते हैं। तो आई विल कॉल दीज आर इकोनॉमिकली यस फ्रीबीज, एंड देर आर सर्टेन फ्रीबीज विच आर इकोनॉमिकली, जैसे आपको जरूरत ही नहीं है, आपको मेट्रो में फ्री पास की जरूरत ही नहीं है, आपकी सैलरी 50,000 रुपया, लाख रुपया महीना है और मैं आपको दे रहा हूं, तो फिर उन फ्रीबीज का क्या होगा? आप, हो सकता है उस जो आपका पैसा बचे उससे आप कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लो, तो उससे आपका शुगर कंटेंट और ब्लड में बढ़ा, आपके एनर्जी लेवल खराब हुए। तो ये इन दोनों तरीके की फ्रीबीज का अंतर को समझना। Kerala model, we talk about Kerala model in positive sense so many times, and so many authors, writers also give reference about the Kerala model. But we have seen how Kerala is also becoming केरला मॉडल क्या है? व्हाट इज केरला मॉडल? बोरिंग्स करके, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के खर्चा करते जाओ, दैट इज नॉट ए इकोनॉमिकली वायबल मॉडल। आप 1 साल 2 साल वो मॉडल कर सकते हो। आप सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए बोरोइंग करते जाओ, अपना बजट की का सत्यानाश कर दो, डेफिसिट बढ़ा दो, दैट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल मॉडल। That model can survive for 1 month, 2 months, 1 year, 2 year, 3 year, 5 year. But ultimately that bomb has to explode. What is that bomb? Fiscal deficit का bomb. कि आप जीएसडीपी से ज्यादा बोरोइंग करते जाओ, that is not economically so viable. is this the reason Kerala is facing the financial सारे स्टेट्स ना, कई स्टेट, आपको मैं बताऊं, पर कैपिटा जीएसडीपी का जो डेट है वो केरला के बाद सेकंड नंबर पे स्टेट्स लाइक राजस्थान में ज्यादा है, क्योंकि आप स्पेंडिंग करते जाओ, वो क्यों करते हैं? वो माइंडसेट क्या, वो बताता हूं मैं आपको। पॉलिटिकल माइंडसेट, अपन तो आ नहीं रहे, अपनी तो सरकार बन नहीं रही, तो जो नई सरकार है उसका नाश करके चले जाओ। वो होता है ना कि हम कोई घर में गए और घर खाली कर रहे हैं, तो नया टेनेंट आ रहा है तो पूरा घर, तो ये प्रवृत्ति गलत है। दिस इज ए रॉन्ग स्टाइल। कई लोग करते हैं आदतन कि अरे अब तो अपन तो जा रहे हैं, हम तो किराएदार थे, अब नया किराएदार, क्योंकि सरकार में तो एक पार्टी तो हमेशा रहती नहीं है, वो तो देश के लोग डिसाइड करते हैं। तो आप जब जा रहे हो, आपको पता हम आ नहीं रहे, तो आप जाते जाते हर महिला को 5 लाख दे देंगे। अरे कहां से दे दोगे? हर किसान को 10 लाख दे देंगे, कहां से दे दोगे? सिर्फ घोषणा करके भ्रमित करो। जस्ट अनाउंस एंड कंफ्यूज। दिस पॉलिसी इज AC, announce and confuse. Just to confuse young people, we will give 5 lakh rupees to every young person. That is what Congress party is trying to do. One of the recent statement of Rahul Gandhi again made and come into controversy, that he talked about the wealth redistribution if voted to power. How do you see this statement of wealth redistribution?
that kind of statements are against the unity of our nation. And I will give you not only one statement, I will give you the Karnataka Chief Minister's statement. हम 1 रुपया GST देते हैं, हमको 35 पैसा मिलती है. This is CM of a state is saying. इसलिए हमारा GST में पैसा, हमारा 1 रुपया हमको वापस चाहिए. The brother of Deputy CM, D.K. Shivkumar's brother, had made and against the statement against the unity of our country. It was done. It was made 2 months back. So these type of statements are against the constitution of our country. These type of statements are against the unity of our country. When you are making such statements, then any other state like Jharkhand CM can also say कि सारा mineral तो मेरे यहीं से आता है. Bihar Chief Minister and UP Chief Minister can say that in the entire country the manpower and workforce I am supplying. Without manpower and workforce, what you will do? Rajasthan Chief Minister will say कि हमारा आदमी ने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता, तो ये हमारा मेडल है. These kind of statements are anti. हरियाणा चीफ मिनिस्टर से कैन से कुश्ती में तो हमारे ही पहलवान जीतते हैं. तो गुजरात चीफ मिनिस्टर कैन से देश की सारी कैपिटल जो बड़ी कंपनियां हैं वो हमारे लोग चला रहे हैं. तो these kind of statements are against the unity of our country. We are one country. तो वो जो एक डिबेट है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड दैट माइंडसेट का वो स्टेटमेंट है जो आप बोल रहे हो. वी आर वन कंट्री. राजस्थान, गुजरात, बंगाल, त्रिपुरा, केरला, कर्नाटका, these are not different countries in itself. That is one country, that is Bharat, that is India, and that is as per Constitution of India. एक तरफ तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात करते हो, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हो, दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट्स. फिर इसका एंड नहीं है. फिर दूसरे स्टेट्स ने भी वापस काउंटर बातें करना चालू हो गई, तो आपका क्या जवाब रहेगा? अभी आप कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने कहा बिहार 1 रुपया देता है तो उसको, और उत्तर प्रदेश 1 रुपया देता है तो 2.25 मिल जाते हैं. हम 1 रुपया देते हैं तो 35-40 पैसे, कुछ ऐसा डाटा बताया, वो मिलता है. फिर वो वापस उन्होंने काउंटर सवाल का भी पूछ लिया कि मैन पावर सप्लाई जो कारखानों में मजदूर काम कर रहा है वो तो मेरे स्टेट का कर रहा है. जो इंटेलेक्ट, जो कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं वो मेरे स्टेट के लोग ज्यादा है, क्योंकि मेरी पॉपुलेशन ज्यादा है. उनको मैं बंद करा दूं, फिर आप कैसे करोगे? आप जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी तो आपकी जीएसटी जनरेट ही कैसे होगी? तो these kind of statements are against the spirit of one nation, India, that is Bharat. These kind of statements are against the spirit of constitution of our. Talk about the much hyped yatra, the Bharat Jodo Yatra, and then the Bharat Nyay Yatra, you can say. During the whole yatra, Rahul Gandhi met several persons that became controversial, made several comments that became controversial. Who were the people? वो बताया ना मैंने, ये 3 लोग, जिसने मॉनिटर का चुनाव नहीं These लड़ा. are the three बस जिसने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, नंबर 1, उसको पता ही नहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है. दूसरा वो है जिसको उत्तर प्रदेश बिहार का अंतर नहीं पता और टिकट दे रहा है वो सारे. तीसरा 300 साल से मैनिफेस्टो बना रहा. ये ऐसे लोग हैं. एंड आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. यात्रा फर्स्ट, दैट भारत जोड़ो यात्रा, maximum time that yatra had spent was in Rajasthan and Madhya Pradesh. Maximum time. What happened? What are the results of these 2 states last year after that yatra? What was the result? Then if the results were negative, it means public is not mobilizing because of that yatra. What is the need of the second yatra? I'm asking a political question. If you are doing a yatra just for your physical fitness, I am okay with that. Okay. पर चलना चाहिए आदमी को, और मुझे थोड़ा ज्यादा चलना चाहिए. मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं फिट रहूं 10-15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल के, तो आपका ऑब्जेक्टिव ठीक है, आप करो. पर अगर आपका ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल है
तो आपकी यात्रा तो कोई फ्रूट दे ही नहीं रही. Then why you are doing? That is the reason I was telling that ground connect टूट चुका. आपको पता ही नहीं कि लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या चाहते हैं. जैसे एक और एग्जांपल देता हूं. मेरे फोन में माई फोन नंबर्स, मोबाइल नंबर इज देयर ऑन इंटरनेट. आप मेरा नाम डाल के मोबाइल नंबर डालोगे तो आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा. पूरे देश के कार्यकर्ताओं के मेरे पास फोन आते हैं, मैं उठा भी था. और कांग्रेस का कोई नेता कभी नहीं उठाता और ना उनका फोन नंबर पब्लिक में. तो ये मेरे पास अभी फोन आया कि भैया अपन केजरीवाल को अभी सप्ताह भर पहले तो गालियां दे रहे थे और आज उसके फेवर में रैली कर रहे हैं रामलीला मैदान में. भैया करना क्या है? ये तो कंफ्यूज हो गया भैया. ये दिल्ली के कार्यकर्ताओं के फोन है. आप 15 दिन पहले बोल रहे थे आजाद भारत का सबसे भ्रष्ट आदमी केजरीवाल, ये बोलते थे. आज वो हो गया इस देश का सबसे ईमानदार सत्यवादी नेता. तो दैट्स व्हाट पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि गौरव जी आपने कांग्रेस छोड़ दी. मैंने कहा मैं तो वहीं खड़ा हूं, कांग्रेस चली गई. मैं तो आज भी बोलता हूं, टुडे आल्सो आई एम मेकिंग ए स्टेटमेंट दैट कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है. और कांग्रेस बदल गई. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं. जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं उदयपुर में था. इस मोबाइल में कम से कम मेरे 100 कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मैसेज है. भैया घर के बाहर ही नहीं निकल सकते, लोग हम पे हंस रहे हैं. तो मैंने कहा आओ, हाँ राम मंदिर है वहां पे उदयपुर में, हम सब मिलेंगे, अखंड रामायण का पाठ करेंगे. आप देखना मेरी ट्विटर टाइमलाइन में उस दिन में आपको मैं अखंड रामायण का पाठ करता दिख भी जाऊं. बट वी कैन से दिस फॉर द बीजेपी ऑल्सो ना. भाजपा ने भी कई सारे दागी नेताओं को लिया अपनी पार्टी में, जैसे प्रफुल्ल पटेल है, अशोक चव्हाण है. ये लोग बड़े नेता रहे जिनके ऊपर बड़े आरोप रहे, लेकिन अब वो भाजपा में है. मेरे ऊपर क्या दाग है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ. सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, पुलिस कंप्लेन. आप मेरे पड़ोसी को भी मेरे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं, पूछ के जाना. तो ये रोज सुबह शाम कहना है कि वॉशिंग मशीन. अरे गौरव वल्लभ को कौन सी वॉशिंग मशीन की जरूरत है, बताओ ना. गौरव वल्लभ तो आपके साथ जब आया जब आप 42 सांसद थे पार्टी के, क्योंकि उसने सोचा देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी में नए लोगों की, नए आइडियाज की, राष्ट्र निर्माण के आइडियाज की, धर्म की रक्षा के आइडियाज की जरूरत होगी. आपके पास जब आया ना, वो अपना प्रोफाइल लेके देश की कोई और पॉलिटिकल पार्टी में जाता तो वो उसको वहां जगह नहीं मिलती क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं. और आज मैं कांग्रेस छोड़ी मैंने और भारतीय जनता पार्टी में आया. मेरे ऊपर कौन सा दाग है? मेरे माता पिता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है. ना तो मैंने कभी जीवन में मॉरली गलत काम किया, ना फाइनेंशियली गलत काम किया, जाए ना क्रिमिनली गलत काम किया, ना सिविल का कोई गलत काम किया. मेरे नहीं करता हूं, मैं करता ही नहीं. तो दाग दाग करके आप मेरा गिव माई एग्जाम्पल टू देम ना, कि ये बंदा जो कमिटेड आदमी था आपके लिए, उसके ऊपर बेदाग आदमी था, वो क्यों आया? क्योंकि उस आदमी की अंतरात्मा ने सनातन को गाली बर्दाश्त नहीं करी. उस आदमी की अंतरात्मा ने भगवान राम का उपहास उड़ाना बर्दाश्त नहीं किया. उस आदमी की अंतरात्मा ने इकोनॉमिक समानता के अधिकार को, जो कांग्रेस पार्टी रोज गालियां दे दे के बर्बाद करती है, उसको बर्दाश्त नहीं किया. बस. तो ये दागी कहना वो आ गया, ये इस वॉशिंग मशीन में आ गया. मेरा उदाहरण देके पूछो ना उनसे. अच्छा, देश में चुनावी माहौल है. अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त जो कांग्रेस ने पूरा चुनाव लड़ा वो रफाल के मुद्दे पे लड़ा. ये चुनाव लगभग अगर मोटे तौर पे कहें तो कांग्रेस पार्टी अडानी, अंबानी और कास्ट सेंसस के ऊपर बात कर रही है. तो ये जो आइडिएशन होता है हर चुनाव से पहले, एक ऐसा मुद्दा जिसको बहुत लंबे समय तक खींचा जाता है, ये आइडिएशन कहां से आती है? ये कह रहा हूं ना, ग्राउंड लेवल कनेक्ट तो टूट चुका है. ग्राउंड लेवल कनेक्ट है नहीं तो आपको कोई भी कुछ भी बोल जाता है, आप उसको मुद्दा बना लेते हो. मैंने कहा ना, अचानक से सुबह ईवीएम हैकिंग,
दूसरे दिन सुबह कास्ट सेंसस, तीसरे दिन सुबह अडानी अंबानी को गालियां, चौथे दिन सुबह बेरोजगारी, पांचवें दिन सुबह इन्फ्लेशन, छठे दिन सुबह अग्निवीर, सातवें दिन सुबह जीएसटी। आपके पास आइडिया ही नहीं है। कोई चलता चलता कोई प्रादेशिक दल का नेता कह देता ओबीसी का मुद्दा उठा लो, ओबीसी के वोट मिल जाएंगे, कांग्रेस पार्टी वो उठा लेती। आप कभी कांग्रेस पार्टी ने ये बताया कि हम कास्ट सेंसस में कौन सा डाटा कैप्चर करेंगे और उस डाटा को कैप्चर करने से हमें क्या फायदा होगा? क्या आपने कभी बताया? आपने मई 2022 में जो राजस्थान में चिंतन शिविर हुआ उसकी बात की। चिंतन शिविर में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया इसके बारे में कि वहां तकरीबन 150 कांग्रेस के नेताओं ने ऐसी मांग उठाई कि हमें दही हांडी, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेलिब्रेट करने का हमें परमिशन दिया जाए। कुछ जो केरला कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया। बाद में जयराम रमेश ने इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये कहानी कितनी सही है और क्या हुआ था, ये पूरी तरीके से बताएं। शिविर में 4-5 पैनल्स बने थे, एक इकोनॉमी पर, एक राजनीति पे, एक सोशल, एक यूथ पर। तो मैं इकोनॉमी वाले पैनल में बैठा था। तो इकोनॉमी में जो मुद्दे डिस्कस हुए मेरे को उसके बारे में जानकारी, ये मुद्दे कोई दूसरे पैनल में डिस्कस हुए होंगे, पर मेरे को भी इन चीजों को मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा था कि इस तरह की चीजें वहां उठी थी। और इसको आप इस ये तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं कह रहा हूं आपका मेन आइडिया था 50 अंडर 50, उसको ही आपने खत्म कर दिया। कहाँ लागू किया, किस जगह लागू किया? और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो बिना क्लास मॉनिटर के चुनाव नहीं लड़े हुए एमपी एमएलए, तो इनके लिए बहुत बड़ा चुनाव है। जहां के ये मूलतः ये लोग हैं, वहां पे इनको 4 आदमी नहीं जानते, 4 आदमी। और 24 साल से राज्यसभा में, 24 साल से हमारी एक पीढ़ी खत्म हो गई, पर इनकी राज्यसभा खत्म नहीं हुई। इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है जो मैंने आपको बताया, सुबह मोदी को गाली, दिन में अंबानी और अडानी को गाली, और शाम का कार्यक्रम मैं नहीं बता सकता। There is an allegation that the influence of left is growing in the Congress party under Rahul Gandhi. ग्रोइंग नहीं, ग्रोइंग मत बोलो, दैट इज द ओनली इन्फ्लुएंस। ग्रोइंग इज ए स्मॉल वर्ड, दैट इज द ओनली इन्फ्लुएंस। अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं होता तो गौरव वल्लभ जैसे लोग जो सनातन की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे, उनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो डोंट मेक ए स्टेटमेंट ग्रोइंग, दैट इज द ओनली इन्फ्लुएंस। और ये सारे लोग वो है जिनको गरीबी, भुखमरी, लाचारी सिर्फ रिसर्च टॉपिक में दिखते हैं। इनको कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गरीबी के लिए मैं इनको बोलूं कि चलो 1000 रुपए का डोनेशन करे तो भग जाएंगे, 1000 रुपए के डोनेशन में। थोड़ी सी चर्चा आपके राजनीतिक कैरियर को भी लेकर करे। आपने झारखंड से चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर आपने राजस्थान से असेंबली पोस्ट लड़ा। क्या आने वाले दिनों में गौरव वल्लभ कहीं से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में राज मैंने जीवन में कभी चुनाव का टिकट नहीं मांगा। आप उस समय के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे झारखंड के, जो अब बीजेपी में आगे आरपीएन सिंह साहब, पूछ लेना उनसे। मैंने टिकट मांगा कि वो खुद आए कि गौरव प्लीज लड़ लो। मैंने नहीं मांगा क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं था लड़ने के लिए, पर मैंने ताकत से लड़ाई करी 8 बार से। अगर मैं टिकट मांगता मिलिंद, तो क्या मैं वैसी जगह से नहीं मांगता जहां पे कांग्रेस जीत रही हो? ये तो कॉमन सेंस है ना, कि मेरे में वो भी नहीं है। दूसरा, मैंने चुनाव लड़ा उदयपुर से, जो राजस्थान में अगर बीजेपी की 5 स्ट्रॉन्ग सीटें हैं उसमें एक उदयपुर होगी, 200 में से 5 दफा से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैंने नहीं मांगा, पार्टी ने आदेश किया, पूरी ताकत से लड़ा। यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो कभी ना डरे, ना आज डर रहे हैं, ना कल डरेंगे। पर आप पहले भी डरते थे,
आज भी डर रहे हो और कल का मुझे पता नहीं, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। आपने कांग्रेस के अस्तित्व के खतरे की बात की, कितनी सीटें कांग्रेस इस चुनाव में जीतने जा रही मेरे पास जब तक डाटा नहीं है मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस नहीं देता, पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि 2019 से कम सीटें होगी, ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि देश का मूड मैं समझ रहा हूं। और राजस्थान और झारखंड जहां की मुझे जानकारी है, वहां पे मैं कह सकता हूं राजस्थान में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत रही। 3 सीटें तो कांग्रेस ने, कैंडिडेट ही नहीं मिले, अलायंस को देनी पड़ी। क्या आपको विश्वास होगा, राजस्थान में कांग्रेस ने 1 सीट सीपीआई को दे दी, 1 सीट आरएलपी को दे दी, 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी को दे दी, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है। यह हालत है। झारखंड और राजस्थान में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स टू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गौरव जी, थैंक यू। Thank you to all the viewers of Organizer.